السلام علیکم. پروگرام پیام سیام کے سیگمنٹ انداز بیان میں میں ہوں آپ کی میزبان تسمیہ رفیق. چلتے ہیں آج کے سیگمنٹ کی طرف. ہمارے سیگمنٹ کی پہلی مقررہ ہیں بنت زہرا، جن کا تعلق ہے یونیورسٹی آف مینجمنٹ اینڈ ٹیکنالوجی سے. میرے ہاتھوں سے میرے ہونٹوں سے خوشبو جاتی نہیں، میرے ہاتھوں سے میرے ہونٹوں سے خوشبو جاتی نہیں کہ میں نے اسم محمد کو لکھا بہت اور چوما بہت. کاروان علم کے رہنماؤں اور میرے عزیز ساتھیوں، آج مجھے جس موضوع کو اپنے گلدستہ میں سجانے کا موقع ملا ہے وہ ہے جو نہ ہو عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے. جناب صدر، عشق مصطفیٰ صرف لفظوں کا اظہار نہیں بلکہ عمل کی میزان ہے. یہ محض ایک نعرہ نہیں بلکہ عشق مصطفیٰ میں خاک و خون میں غسل کرنے کا نام ہے. یہ محض مصلحت و ریاکاری نہیں بلکہ عشق مصطفیٰ میں خون کے دھاروں پر چلنے کا نام ہے. یہ صرف تقریر کی ساحری نہیں بلکہ شمع انور مصطفی میں پروانہ وار نثار ہونے کی جلوہ گری ہے. شاعر مشرق علامہ اقبال اپنا عشق رسول کچھ اس طرح بیان کرتے ہیں کہ لوح بھی تو قلم بھی تو، لوح بھی تو قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب، گنبد آبگین و رنگ تیرے محیط میں حباب، شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود، شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود، فقر جنید و بایزید تیرے جمال بے نقاب. تیرا شوق اگر نہ ہوتا میری نماز کا امام، تیرا شوق اگر نہ ہوتا میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب، میرے سجود بھی حجاب. جناب صدر، عشق مصطفیٰ ماضی، حال اور مستقبل سے بے نیاز ہوتا ہے. ایک مومن کے لیے عشق مصطفیٰ اس کی زندگی، اطاعت مصطفیٰ اس کی سربلندی اور ناموس رسالت کی پاسداری اس کی تبندگی ہوتی ہے. وہ اپنا عشق رسول سے کچھ اس طرح بیان کرتا ہے کہ غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، یہ سر کٹ جائے یا رہ جائے کچھ پرواہ نہیں کرتے. جناب حاضرین، اگر ہم ماضی میں کچھ دیر کے لیے کھو جائیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے اسلاف نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق میں کیا کیا قربانیاں نہیں دیں. حضرت بلال کا کوڑے کھا کر عشق رسول کی گواہی دینا، حضرت عمار بن یاسر کا کانٹوں پہ گھسیٹے جانا، حضرت سلیمان کی زنجیروں کی جھنکار، اور پھر حضرت ابو بکر صدیق کا کافروں کے ظلم سہ کر یہ کہنا کہ اے ظالموں مجھے مار ڈالو مگر میرے نبی کو کچھ مت کہو. اور پھر تاریخ کے دوش پہ سوار ہونے والے غازی علم دین شہید کا ناموس رسالت کے لیے قربانی دینے کا ایمان آفری منظر نظروں کے سامنے آ جاتا ہے تو یہ دل، تمام مومنوں کے دل سے یہ پکار نکلتی ہے کہ آنکھوں میں نور دل میں بصیرت ہے آپ سے، آنکھوں میں نور دل میں بصیرت ہے آپ سے، میں خود تو کچھ نہیں میری قیمت ہے آپ سے. قربان ہو رہا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پہ، قربان ہو رہا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پہ، عقبہ ہے آپ سے میری جنت ہے آپ سے. اگر آج ہم پھر اسلاف کی وہ داستانیں، وہ ماضی کی داستانیں زندہ کرنا چاہتے ہیں، اگر آج ہم پھر سے لوح و قلم کو اپنی میراث بنانا چاہتے ہیں تو ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق کا دعویٰ کچھ یوں کرنا ہوگا کہ تیرے در کے سوا آسودگی دل کہاں ملتی، تیرے در کے سوا آسودگی دل کہاں ملتی، زمانہ تیرے در پہ ٹھوکریں کھاتا ہوا آیا. شکریہ. ہمارے سیگمنٹ کے اگلے مقرر ہیں طلحہ مسعود، جن کا تعلق ہے لارڈز لاء کالج لاہور سے. صدر ذی وقار، اس خاکدان گیتی میں رسالت مآب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات کا مطالعہ کریں اور قرآن و حدیث کو پرکھیں تو یقیناً یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ انسان تو انسان، جنات، حشرات، حیوانات، نباتات، غرض کائنات کی ایک ایک چیز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ عشق میں محو مبتلا ہے. تو پھر میں یہ کہوں گا جو ہو نہ عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے. وہ دانائے سبل خاتم الرسل مولائے کل جس نے، وہ دانائے سبل خاتم الرسل
मौलाए कुल जिसने गुबारे राह को बख्शा फरोगे वादिये सीना निगाहे इश्क व मस्ती में वही अव्वल वही आखिर वही कुरान वही फुरकान वही यासीन वही ताहा। सदर ज़िवकार अल्लाह पाक कुरान मजीद में इरशाद फरमाते हैं अन्नन नबीयु ऊला मिन अनफुसिहिम कि बेशक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोमिनों की जान से ज़्यादा करीब हैं। अगर हम तारीख़ का मुताला करें तो उस नीलगुं आसमान के नीचे कायनात शाहिद है कि जिस किसी ने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इश्क किया तो अल्लाह पाक ने उसके दर्जात को बुलंद कर दिया, उसे आला व अरफा मुकाम अता किया गया। अगर यह इश्क अबू बकर करते हैं तो सदीक़े अकबर कहलाते हैं, अगर यही इश्क उमर ने किया तो तारीख़ ने उन्हें फारूक आज़म के नाम के साथ पुकारा, और अगर यही इश्क उस्मान करते हैं तो गनी कहलाते हैं, यही इश्क अली पे आया तो हैदरे करार कहलाए। हुस्ने यूसुफ पे कटी अंगिश्ते ज़ंदाने मिस्र तेरे नाम पे सर कटाते हैं मर्दाने अरब। सामिने ज़िवकार गोया कि कुरान मजीद फुरकान हमीद हमसे ये खुद कह रहा है कि तुम्हारे जिस्म के अंदर जो जान है उस जान की जान खैरुल अन्नाम फ़ख्रे आदमीयत मालिके कोनो मकां सैयदे इन सुजा पैगम्बरे पैगम्बरा सरवरे सरवरा रहमते आलमिया हबीबे किबरिया अल्लाह के महबूब दाने गयूब राजदाने ज़मीन व आसमान की ज़ाते ग्रामी है। लामा मोहम्मद इकबाल शायर मशरक, उनका तमाम का तमाम फ़लसफ़ा इस एक शेर के गिर्द घूमता रहा कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज़ है क्या लौहो कलम तेरे हैं। तो फिर मुझे कहना होगा जो हो ना इश्क मुस्तफ़ा तो ज़िंदगी फजूल है, तो ज़िंदगी फजूल है। या साहिबल जमाली व या सैयदल बशर, या साहिबल जमाली व या सैयदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरुल कमर ला यमकिनु सनाउ कमा काना हक़्क़ुहु बादज़ खुदा बुजुर्ग तू ही बंदाए बुजुर्गर, तू ही बंदाए बुजुर्गर वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। हमारे सेगमेंट के तीसरे मुकर्रर हैं मोहम्मद अवैस, जिनका ताल्लुक़ है सुपीरियर यूनिवर्सिटी लाहौर से। सदर अली वक़ार, आज मुझे जिस मौजू पर लब खुशाई करने का मौका मिला है वो है जो नहीं है इश्क मुस्तफ़ा तो ज़िंदगी फजूल है। सदर अली वक़ार, तारीख़ के औराकों को खंगाल मारा जाए तो पता चलता है तख्लीक़ कायनात की असल वजह ही इश्क मुस्तफ़ा है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद वल फुरकान हमीद में फरमाया वइन्ना लैसल इंसान इल्ला मा सा, इंसान के लिए वही कुछ है जिसके लिए वो जुस्तजू करता है। तो लिहाजा सैयदना सदीक़ अकबर ने जब इश्क मुस्तफ़ा किया तो वो सदीक़ अकबर कहलाए। इसी तरह जब फ़ारूक हज़रत उमर ऊँट चराया करते थे, इश्क मुस्तफ़ा में आए तो फ़ारूक आज़म ने तारीख़ उनको फ़ारूक आज़म के नाम से याद करती है। सदर अली वक़ार, सैयदना उस्मान गनी तिजारत किया करते थे, लेकिन जैसे ही मदीने में कहत आता है मदीने के ताजिर उन्हें 2 गुना ज़्यादा मुनाफा पेश करते हैं, लेकिन वो इश्क मुस्तफ़ा में हजूर की खातिर हजूर की चाह में हजूर के इश्क में होने की वजह से अपना गला फी सबीलिल्लाह लोगों की राह में तकसीम कर देते हैं। मौला अली शेर खुदा पे जब इश्क ने इंतहा की तो अल्लाह के नबी हजूर अक़दस हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको इल्म का दरवाज़ा करार दे दिया। सदर अली वक़ार, इश्क बहुत वसी है। अगर इश्क मुस्तफ़ा की बात की जाए तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने बुरनस को सिर्फ इसलिए कत्ल किया क्योंकि उसने मुसलमानों को पुकारा था, पुकारो अपने नबी को मदद के लिए। जब ये बात सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के कानों में गूंजी तो वो दश्त में आए और अपने रब से दुआ की कि ऐ मालिक, मुझे तब तक मौत न देना जब तक मैं बुरनस की गर्दन न काट दूं। फिर तारीख ने देखा कि बुरनस की गर्दन को काट दिया गया। सदर अली वक़ार, इश्क मुस्तफ़ा, मैं क्यों ना कहूँ इश्क मुस्तफ़ा, खुद ही को कर बुलंद इतना, हर तकदीर से पहले खुदा खुद बंदे से पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। गुज़वे तबूक का मौका आता है, हजूर सहाबा से अर्ज करते हैं कि अपने अपने माल को जंग के लिए पेश किया जाए, तो सैयदना सदीक़ अकबर अपने घर का सारा माल हजूर की खिदमत में पेश करते हैं, सिर्फ इसलिए कि इश्क मुस्तफ़ा था। और जब
और फौरन जिब्रील अमीन हुजूर की बारगाह में हाजिर होते हैं और उनसे पूछते हैं कि अल्लाह के नबी, अल्लाह तबारक व तआला कह रहे हैं सदीक से पूछो क्या ये मेरी रज़ा में राज़ी है। तो डॉक्टर अल्लामा इकबाल ने ये शेर लिखा था कि खुद ही को कर बुलंद इतना, हर तकदीर से पहले खुदा खुद बंदे को पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। सदर अली वक़ार, ये इश्क की इंतहा थी कि इश्क की इंतहा थी कि सैयदना बिलाल हबशी को रेत पर घसीटा जाता है, लेकिन उनके ज़ुबान से सिर्फ एक लफ्ज़ निकलता है कि मुझे मारो, मुझे जो मर्जी करो, लेकिन मैं कहता रहूँगा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। शुक्रिया। अब हम चलते हैं अपने स्टूडियो की तरफ, जहाँ पे मौजूद है मुक़द्दस अमजद हमारे जज के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया तस्मिया आपका। नाज़रीन, जिस तरह से आप जानते हैं कि हमारा अंदाज़े बयां का सेगमेंट जारी सारी है, हमारे पास आज भी 3 मुकर्ररीन मौजूद थे और आज का जो मौजू था जो हो ना इश्क मुस्तफ़ा तो ज़िंदगी फजूल है। हमारे साथ मौजूद हैं सदर मजलिस मुबाहिसा यूसीपी, चीफ मिनिस्टर डिबेट कंपटीशन के विनर रह चुके हैं, यूसीपी से सर्विस एक्सीलेंस के अवार्ड होल्डर रह चुके हैं, 30 से ज़ायद मुकाबला जात में फ़ातेह करार पा चुके हैं, मेरी मुराद जनाब अली हैदर साहब। हम आपको अपनी नशरियात में खुशामदीद कहते हैं और बिला ताख़ीर हम बढ़ते हैं आज के मुकाबले के नताइज की जानिब। जी अली साहब, आप क्या कहना चाहेंगे आज के मुकाबले के बारे में? डिबेट सेगमेंट के हवाले से बात करता चलूँ तो जब भी कभी कोई कंपटीशन आपको देखने को मिलता है तो हमेशा कोई उसका एक फ़ातेह होता है, कोई उसका सेकंड पोजीशन पे आता है, कोई थर्ड आता है। लेकिन बच्चों को मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि जब आपको प्लेटफॉर्म दिया जाता है ना, तो फिर आपको तैयारी के साथ आना चाहिए। जब आपको एक टाइम मिला है, एक टॉपिक मिला है, तो फिर आप उसकी तैयारी करके आएँ। अब इस रोस्टम पर आना और आकर आप तलफ़ुज़ को मतलब अच्छे तरीके से अदा नहीं कर पा रहे हैं, तलफ़ुज़ की इतनी गलतियाँ हैं आपकी, और अपने तलफ़ुज़ के साथ, अपने अल्फाजों के साथ आप इस पैगम्बरी शोबे की रिस्पेक्ट करें और इसका हक़ अदा करें, ताकि ये रोस्टम और ईमाई का आपको मर्तबा और मकाम दे सके। और तीनों बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। इनकी मिली जुली इनकी गलतियां थी, सेम अल्फाज थे जो इन्होंने दोहराए। तारीख़ होता है, तरीख़ नहीं होता, ठीक है। जनाब सदर होता है, जनाब सदर नहीं होता। बुलंदी होती है, बुलंदी नहीं होती। और इसी तरह के कुछ अल्फाज थे। और थर्डली तीनों स्पीकर्स के बारे में ये कहना चाहता हूँ कि आने वाले मुकर्ररीन के लिए भी कि ये जो हमारे अंदर जज्बातीपन है ना भाई, थोड़ा हौसले के साथ आएँ। आप थोड़ा सा ठहराव अपने अंदर पैदा करें। वैसे भी जज्बाती होते हैं और वो यहाँ पे आके भी फिर अपने जज्बात का इजहार करते हैं जब। बिल्कुल, लेकिन उसके साथ अगर वो उसकी क्लैरिटी हो जाए ना, अल्फाजों की क्लैरिटी होगी, अगला बंदा उसको सुनेगा, ठीक है, वो उसको अच्छे तरीके से महसूस कर सकता है कि यार ये लफ्ज़ किस तरह अदा हो रहा है और ये लफ्ज़ किस तरफ जा रहा है और वो कहना क्या जा रहा है। तो बेसिकली एक मुकर्रर जो बंदा है वो माशरे में इस्लाह के लिए अपने अल्फाजों को बयां करने के लिए आता है। वो चाहता है कि मैं जब बोलूं तो लोगों को पता लगे कि एक मुकर्रर बोल रहा है और मैं अपना हक अदा करूं ताकि माशरे की फ़लाह और बका की बात कर सकूं। देखें, हर बंदे के पास बोलने का फ़न नहीं होता, तो ये जो फ़न है इसको इनको यूटिलाइज़ करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए और माशरे की फ़लाह और बका की बात करनी चाहिए। मैं इसी के साथ रिज़ल्ट्स की तरफ भी बढ़ जाता हूँ। जो आज के 2 बच्चे ग़ालिबन आगे जाएंगे, उनमें जो सेकंड मुकर्ररा या मुकर्रर हैं जो हमारे साथ आगे जाएंगे, उनका नाम है बिनते ज़हरा। UMT यूनिवर्सिटी से इनका ताल्लुक़ है। और हमारे साथ जो फर्स्ट पोजीशन पे हमारे साथ अगले राउंड में जाएंगे, उनका नाम है तलहा मसूद, जिनका ताल्लुक़ लॉर्ड्स लॉ कॉलेज लाहौर से है। मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं जनाब आप दोनों। अगली दफ़ा अच्छी तैयारी के साथ आइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब अली हैदर साहिब आपका। हम अपने दोनों मुकर्ररीन को, आगे जाने वाले मुकर्ररीन को मुबारकबाद देते हैं। नाज़रीन, यहाँ हमारा ये सेगमेंट इख्तिताम को पहुँचता है। यहाँ वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आते हैं, कहीं मत जाइएगा, स्टे विद अस।